आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। कल बतारीख 2 मार्च बरोज़ जुमेरात मॉडर्न मिनी हॉल गंगोली में सोशल स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एसोसिएशन की नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताह के बाद एक मजलिस का इनेकाद किया गया जिसमें शहर गंगोली के एसआई के अलावा अमायदीन शहर ने शिरकत की। मजलिस का आगाज़ मोहम्मद अरीब करानी की तिलावत से हुआ और अब्दुल सुबहान नामी तालिब इल्म ने नाते पाक पेश की, जिसके बाद इदारे के सदर मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब नदवी ने आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इदारे की मुकम्मल कारगुजारी पेश की और खिदमत खल्क पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को इदारे का साथ देने की दावत दी। फिर गंगोली के एसआई ने एसोसिएशन की खिदमात को सराहते हुए क़याम इंसानियत को आम करने की तलकीन की। इदारे के माजी सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान वलीउल्लाह साहब ने इदारे की एम्बुलेंस के तहत दी गई खिदमात का मुकम्मल रिपोर्ट पेश किया। फिर जय भीम संगठन से आए हुए जगदीश गंगोली ने अपनी बात रखते हुए इदारे के लिए एक रकम देने का ऐलान किया। फिर इदारे के नायब सदर जनाब शेख जी मुहिबुल्लाह साहब ने आए हुए मेहमानों को गुल पेश किया और जनाब बाकर साहब ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में www.hearthub.com की जानिब से नौजवानों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट का वर्कशॉप पेश किया गया, जिसमें नौजवानों को CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई। इसी के साथ ठीक 11 बजे तमाम के साथ इस महफिल का इख्तिताम हुआ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ SSC ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಂಗೋಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಗಂಗೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 9, 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಬಡವರ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಷಧಿ, ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು, ಇಂತಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಪ್ಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರವಾಹ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತುಂಬಾ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಔಷಧಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಲೂನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡುಗೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಾಲೆಯ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 8 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ನಮ್ಮ SSC ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. 3 ದಿನಗಳ ತನಕ ಈ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಪುನಃ ಮನೆಯಿಂದ दफन कर। और आपका यहाँ आना हमारे लिए, इस इदारे के लिए काबिल मुबारक अमल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से बहुत
बहुत सारे काम लेकर के उठा था जो गंगोली का हर फर्द इस इदारे से वाकिफ है। एम्बुलेंस के जरिए से ये इदारा अपना नाम शुरू कर रहा था। एम्बुलेंस जहाँ जहाँ भागती और जहाँ जहाँ जाती थी इसकी एक छाप और इसके एक निशान और एक अलामत छोड़ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हमारे इस गांव के वजूद मुहर्रिक और मुतहर्रिक नौजवानों ने इसका बेड़ा उठाया और इसके बहुत सारे फाउंडर्स भी थे जो इनके पीछे पुश कर रहे थे। हालात की नासाजगार और साथ में लोगों का न होना के वतीಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಂತ ಹಲವಾರು ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು SSC ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗಿದೆ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ JBM ಇದರಿಂದ ನಾನು 10,000 ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस SSC एसोसिएशन के फाउंडर बाकर भाई। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस इदारे के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ताल्लुक़ से ज़रा ब्रीफली हमारे आगे पेश करें, और इसके अलावा वो इदारे को तकरीबन 7 सालों से चला रहे हैं, वो किस तरह चला रहे हैं और किन मेहनतों से वो आगे इसको बढ़ा रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स और इसके अलावा भी दूसरे प्रॉब्लम्स। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन हमारे आगे पेश करें इन तमाम चीज़ों को। ये एसोसिएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 7 साल से चला रहे हैं। इसकी इब्तिदा जो हुई, हम लोग जो है आम तौर पे क्रिकेट मैच वगैरह करते थे और उसका जो पैसा है हम लोग पार्टियों में या इसमें इस तरह की जो फजूल खर्चे में वगैरह खर्च कर देते थे। तो किसी एक साहब ने हमसे गुजारिश की कि वो ये पैसा जो है आप फजूल खर्च न करें बल्कि किसी एक गरीब को दे दें या किसी की चैरिटी को ये करें। तो हमारी एक सोच बनी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक छोटा सा क्रिकेट टूर्नामेंट किए और एक मोहताज आदमी जो थे उनको जो है पहली मरतबा हमने उसका जितना भी हमको मुनाफा आया वो सारे पैसे जो है उनको देकर हमारा जो SSC का जो इब्तिदा हुई वहाँ से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने थोड़े से मेंबर्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेंबर्स के चंदे से हम लोग इस चीज़ को चला रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। किसी गरीबों का हेल्प करना या छोटे छोटे से जो काम थे वो छोटे छोटे से अपने फीस जो देते थे मेंबरशिप फीस देते थे उससे हम लोग चला रहे थे। उसके बाद में हमको एक एम्बुलेंस मिली अल्हम्दुलिल्लाह जो इब्राहिम कोला गोवा के हैं, जो अपने कर्नाटक के हैं, वो गोवा में रहते हैं, वो बिज़नेस करते थे। तो उनकी एक एम्बुलेंस हमें मिली जो पुरानी थी, तो हमने उसको रेडी किया और उसके मुताबिक हमने उसको अच्छी तरह ढाला एक एम्बुलेंस की तरह। उसको यानी बहुत बंद पड़ी थी, सालों से बंद पड़ी थी, उसको हमने अपने कब्ज़े में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने बहुत सारे लोगों को हमने फ्री सर्विस भी दिए। और जो फ़ौक़तन जो आदमी हमसे दरख्वास्त करते थे कि उनके पास कुछ नहीं है यानी गरीब तबका है तो उनको हम लोग फ्री सर्विस देते थे। वो फ्री सर्विस जो है हम लोग जो है एक मेंबरशिप जो मिलती थी उससे हम लोग कवर करते थे। उसके बाद में हमने एक शादी वगैरह के लिए सप्लायर का एक टीम बनाई सप्लायर की, और उससे जो हम जो भी आमदनी आती थी वो जो है अपने जो फ्री सर्विस वगैरह का हम लोग पे करते थे उस चीज़ को। उसके बाद में छोटी सी एक जमात जो है तमाम कमेटी, उसमें भी हमने एक SSC कमेटी बल्कि बनाई। चंद अफराद जो इस सोशल वर्क का जो ये रखते थे, जज्बा रखते थे, उनसे जो भी कलेक्शन आता था वो ड्राइवर सैलरी के लिए हम लोग मुतय्यन किए। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये एसोसिएशन जो है चलता गया अल्हम्दुलिल्लाह।
परवान चढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और भी इसको चढ़ाएगा और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे और भी ऊपर तक मज़ीद इसकी जो है परवान चढ़े। और जो आमदनी जो आती है तो वो बस नहीं होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी जो एम्बुलेंस का जो चार्ज है कम से कम ले और एक खिदमत के तौर पे भी हम उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। जो पैसे वाले हैं वो देते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम उनसे लें, क्योंकि एक जो सोशल जो वर्क हमारे दिलों में है अल्लाह ताला उससे जो है कबूल करें ये समझ कर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेंबरशिप बनाना चाहते हैं। अगर कोई भी हजरात मेंबर बनना चाहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर सकते हैं या मेंबरशिप हमें आ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आज हमारे साथ मौजूद हैं SSC एसोसिएशन के एडवाइज़र मोहम्मद मीरा साहब। हम उनसे जो है एम्बुलेंस के ताल्लुक़ से जो SSC एसोसिएशन सर्विस दे रही है उसके ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे कि उनकी सर्विस कहाँ तक है, किसके लिए मुफ्त है और किसके लिए वो रियायत करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो एम्बुलेंस से सर्विस दी जा रही हैं वो एक्सप्लेन करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है 2016 से हम लोग शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जो है बहुत सारे काम अंजाम दिए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है इमरजेंसी के तौर पे 200 किलोमीटर तक हम लोग जो है गरीब के लिए मुफ्त रखे हुए हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है जो हमारा कुंदापुर ताल्लुक़ है तो कुंदापुर के करीबी हॉस्पिटल तक जो है इमरजेंसी सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट को हमें जो है मैंगलोर लेके जाना है, जैसा इधर से जो है 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ तक भी जो है हम लोग जो है मुफ्त में ही सर्विस दे रहे हैं। और जैसा मैयतों को लेके जाना और मैयतों के गुस्ल के टेंट का जो है इस्तेमाल जो है वो भी होता है, वो जो हमारे इदारे में मौजूद है उसका भी हम लोग जो है कम्प्लीटली उसका हमारे वॉलंटियर्स जो है जाके कम्प्लीटली उसको साथ देते हैं। और एम्बुलेंस में जो है हमारे वॉलंटियर्स उसके जो है साथ में ही रहते हैं उसके साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है बहुत सारे सर्विसेज दिए हैं और आगे भी हम लोग देने की बहुत सारी उम्मीदें रखे हैं। इंशाल्लाह आप लोग के सबका ताउन का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग जो है आगे बहुत सारी जो है कार्रवाई करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एसोसिएशन के फाउंडर और जो तकरीबन 7 साल से इस एम्बुलेंस को चला रहे हैं जो इस एसोसिएशन के अंडर चलती है। और उसके अलावा अब जो नई एम्बुलेंस आई है वो भी इनकी ज़िम्मेदारी में है। और ये वो शख्स हैं जो तकरीबन 100-150 किलोमीटर का फासिला भी जो है 1-1.25 घंटे में जो तय कर चुके हैं और तकरीबन 7 साल से एक एम्बुलेंस की ज़बरदस्त सर्विस दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो एम्बुलेंस के एक्सपीरियंस के ताल्लुक़ से जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो हमारे आगे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जो हमारा एक इदारा है SSC एसोसिएशन, सोशल स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एसोसिएशन, उन तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के एक हिम्मत अफजाई से हम आगे बढ़े हैं। आज 8वां साल चल रहा है इस इदारे को। बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ा है, कई सारे मुसीबत को अंजाम देना पड़ा। एम्बुलेंस की सर्विस के बारे में मैं कुछ बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ टाइम पहले हम एक भाई के पास एक डोनेशन के लिए गए थे, तो वो भाई ने पूछा इसमें से एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है। जो हम लोग चारों एक इदारे से 4-5 साथी गए थे, इसमें से एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है। तो उस भाई को दिखाए, हाँ ये एम्बुलेंस ड्राइवर है। तो उस भाई ने बता रहे थे इदारे तो सब लोग चला सकते हैं लेकिन एम्बुलेंस सबकी बस की बात नहीं है। वो जिसके दिल पे खिदमत का जज्बा है वही दे सकता है। मैं अपनी कोई कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। इस इदारे में बहुत सारे खिदमत को अंजाम दिए हैं। ख़ास करके जो एम्बुलेंस सर्विस जो गरीबों के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट के वक्त पेशेंट को किसी रिक्शा में या गुड्स रिक्शा में या किसी में भी लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं, कोई भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद का जो इनका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, हॉस्पिटल से घर पर लेकर आना, और जो उसके बाद फिर किसी का हाथ पैर टूटा हुआ रहता है वो
कार में नहीं जा सकता है, तो ऐसे मौके पर जो हमारे एम्बुलेंस कई सारी खिदमत को अंजाम, इसके जो सर्विस को अंजाम दिए हैं, उस वक्त कोई एम्बुलेंस ड्राइवर कोई साथ नहीं रहता है, कोई एम्बुलेंस साथ नहीं देता है। तो और हमारे एम्बुलेंस माशाल्लाह ख़ास करके ऐसे मौके पर उनकी टोटल मुकम्मल सर्विस, और जो हादसा होता है, तो आज से 4 साल पहले कोयम्बतूर के एक जो फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी है उनका घर, तो यहाँ पर हमारे करीब एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस के लिए कॉल किए, मैं चला गया, दोपहर का 2 बजे का टाइम था, कॉल आ गया एम्बुलेंस के लिए, तो उनकी पहला ट्रीटमेंट हम लोग तालुक के अस्पताल पे लेकर गए, फिर इमरजेंसी था, स्पॉट में एक की डेथ हो गई थी, और वहाँ से फिर चारों को मणिपाल में शिफ्ट करना पड़ा। मणिपाल में शिफ्ट करने के बाद फिर उसके बाद उनके पास मोबाइल लेकर फिर हम लोग उनके पार्टी तक उनको मैसेज दिया, आपके बंदों का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से एक डेथ हुआ है। तो उस बंदा बेंगलुरु में काम कर रहा था, गैर मुस्लिम भाई है हमारे, तो उनका एक ही रिक्वेस्ट था, प्लीज़ मोहम्मद भाई आप उनके घर वाले आते तक आप उनके साथ में रह जाओ, उनका वहाँ पर कोई नहीं है, तो आप उनके साथ में रह जाओ करके। 5 पेशेंट, एक डेथ बॉडी, एक मौत हो गई थी, और 4 पेशेंट यहाँ जो मणिपाल जी एक हॉस्पिटल होता है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, और जो न्यूरो का अलग होता है, और जो ऑर्थो का अलग होता है, तो काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है वो, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज करके। तो उनके पीछे मैं सारी रात एक एक पेशेंट को लेकर, जो उनका एक्सरे के लिए, स्कैनिंग के लिए लेकर भाग रहा था। मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुझे खुद कन्फ्यूज़ हो रहा था, हालांकि हमारी खुद पहचान की हॉस्पिटल है, फिर भी मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा था कहाँ से कहाँ निकलना है। ऐसे मौके पर हम लोग सुबह 5 बजे तक उनका आने का इंतज़ार किए, फिर का वो आ गए। आने के बाद फिर यहाँ से उनके पास पैसा भी नहीं था उस वक्त, तो उनके जो पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करके कोयम्बतूर लेकर गए। तो ऐसी सारी सर्विस है एम्बुलेंस की सर्विस, जो ख़ास करके जो एम्बुलेंस जो ड्राइवर्स होते हैं, वो एक्सीडेंट होता है लेकर बस हॉस्पिटल डाल दिया और वहाँ से किराया लेकर निकल पड़े। कोई उनके साथ में रहने वाला, ऐसे बहुत कम होते हैं साथ रहने वाले। तो मैं सब एम्बुलेंस ड्राइवर से गुजारिश करता हूँ, ऐसी सर्विस ना दे, बस आप उनका मुकम्मल इलाज तक उनके घर वालों के आने के इंतज़ार करके फिर आप इस तरह की खिदमत को अंजाम दें। इसमें एक जो हम लोग, हमारा नाम होता है मोहम्मद, किसी का नाम होता है अहमद, किसी और कुछ, क्योंकि ये इसमें एक बहुत अच्छा एक मैसेज है इस्लाम का। तो हम इस तरह से खिदमत करेंगे, इंसान की खिदमत करेंगे, वाकई में ये सही है जो। और मेरे से कुछ बोलने में ऊंच नीच हो गई तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब नदवी, जो कि सोशल स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे इस इदारे के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। मैं मौलाना से सवाल करता हूँ कि इस इदारे के ताल्लुक़ से जो कारगुजारी है वो हमारे आगे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इदारा जो सोशल स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एसोसिएशन के नाम से है, 2016 से इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। माशाल्लाह ये इदारा बिला तफरीक़ मज़हब, किसी भी मज़हब को सामने लाते हुए, किसी भी मज़हब को इशू बनाते हुए उसको बाजू रख कर के ये काम कर रहा है। इसका सबसे बेहतरीन जो काम है, बुनियादी काम, वो एम्बुलेंस का है। जब से ये इदारा 2016 से कायम हुआ है, तब से एम्बुलेंस का सिलसिला जारी है, और इसमें बिला तफरीक़ मज़हब हर इंसान को उसके इमरजेंसी के मौके पर हॉस्पिटल तक पहुंचाना या उसकी तीमारदारी करना, उसके अलावा उसके मेडिसिन पहुंचाना, जितनी भी ज़रूरियात एम्बुलेंस के साथ जुड़ी हुई है, ये बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इदारा काम कर रहा है। और इसके अलावा जो लोग बीमार रहते हैं, उनके घरों को जा कर के उनकी देखभाल करना और उनका जो माहाना मेडिसिन होता है वो पहुंचाना। इलाक़े के और दीगर जगह के जो बेवा औरतें होती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है,
या फिर वो औरतें जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं, उनको माहाना कुछ पेंशन देना, कुछ उनका रक़म मुतय्यन करना, ये सारे काम ये इदारा कर रहा है और मौजूदा हालात के तकाज़ों के मुताबिक ये इदारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम मसलक के लोगों को फ़ायदा हासिल है और तमाम मसलक के लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। और आज माशाअल्लाह आज का दिन इस इदारे के लिए और तमाम मेंबर्स और तमाम मेंबर्स के लिए ख़ुशी का मौका है कि आज एक नए एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया, उसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद एक वर्कशॉप जो बेसिक लाइफ तो सेफ्टी का जो चीज़ें होती हैं उसके लिए क्या क्या सपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं उस ताल्लुक़ से एक बड़ा वर्कशॉप हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा आज का मौका था, तमाम लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। इस तरह ये इदारा काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और इसके जो काम करने वाले मेंबर्स हैं तमामों को अल्लाह ताला ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।